Today also we'll be continuing the same topic of computation of taxable income from business and profession. So can anybody recollect what exactly we have done yesterday as computation of income from business and profession? What are the two different types of questions which we may get in the exam? First one, there will be receipt and payment or income and expenditure for the professional people, whereby we will be considering only those income which are business income and will be considering only those expenses which are business expenses for our computation. And we can get their taxable income. The second type of question we may get, where from business where they have already calculated their their income and they have created the profit and loss account, but the profit and loss account what they have calculated, the profit which has been calculated through financial accounting method is wrong. So this was the first method which I was referring to you all. So we'll be considering only, and I told you for knowing all this, what is needed, your basic knowledge of commerce is required. By seeing those expenses and income, you can easily classify whether it is for the business, by the business, to the business, from the business or not. If it is so, we will consider, otherwise not. As such, in the Act, section 28 to 44D is pertaining to these classification only. But here in this topic, you need not have to take those exemptions, deduction as per their section, which we did in salary, which we did in house property, which we'll be doing even in other sources. But here it is not so in this topic as well as in capital gain, because so many sections are there. In those heads of income, only one section for reductions are there. But in business and profession, we have 28 to 44. Similarly, in capital gain, we have 45 to 55. So those many, and their subsections as well. Not only section, their subsections are also very important. So you need not have to focus those sections, subsections thoroughly. Only you need to have the knowledge, basic knowledge of, taking it for business or profession. That is going to satisfy your need. But yes, practice is required. Yesterday we did 2-3 questions, and I was very happy the way you have answered those income and expenses, whether to be accepted or not, whether to be allowed or not. Most of the time it was right answer. So this is the first type of question which we may get, whereby we will consider only those income which are business income and only those expenses which are business expenses. And finally, we will take the taxable income from business and profession. But there may be alternative type of question whereby they may give the wrong calculated profit, and that net profit or loss what they have calculated will be my base, and I'm going to add all those expenses which are inadmissible, which are not allowed as a business expenses, which are not allowed or not to be considered under head of business, to be considered under any other heads which is given in the Act, remaining 4 heads. Okay, like we have seen that there was the municipal tax paid on let out property, purely not for this. That is pertaining to income from house property, and that will be taken in that head of income. So likewise, those expenses which are not allowed will not be accepted here and to be added, because due to that my profit is went down. So I will add those things, and finally we will get the subtotal. And those income even which are not allowed, okay, that also you might get salary income, you might get
income from house property. Yesterday also we have seen in two questions, there was rent received on let out property. So that is other head. In finance, we could have taken. In finance, we are taking everything. In finance, even we take the capital, personal expenses, capital expenses allowed, but here it is not allowed. Any provisions, any reserves, not allowed. So these are the things which are very, very crucial, very important when we compute the income from business or profession. So here we need to rectify what wrong we did in financial, we need to rectify. So we will add up those expenses and we will subtract those income. Finally, whatever is left out is in taxable income from business or profession. Based on that, we did two questions. I hope you can remember and recollect those questions. Yes or no? अभी देखेंगे तो याद आएगा. So this was the topic which we are dealing yesterday. Section 28 to 44. These were the basic format which we have discussed just now. If I am not wrong, we did this question. Yes or no? ये हमने किया था कि नहीं कल? Am I audible to you all? Yes sir. मैंने पूछा कुछ, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे. किया था सर ये. Yes sir. वही तो पूछ रहा हूँ. Even this question we did. गोविंदा वाला किया था ना? Yes, sir. Yes. Okay. Even this question we did. Sri Gajanan वाला. याद करो. देखो आपके नोटबुक में रहेगा. है? Yes sir. हाँ, इसके आगे देखो. So I mean, this question we did in two different ways. ठीक है. ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो. प्रॉफिट से स्टार्ट करो, जो इनएडमिसिबल है उसको ऐड करो और जो इनकम नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करो. अल्टरनेटिवली सिर्फ जो इनकम आपको लेना है वही इनकम लो और जो एक्सपेंसेस आपको लेना है वो आप लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा. देयर वोंट बी एनी डिफरेंस. आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन को किसी भी ढंग से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. But most of the textbook, most of the school who sort of school who has written the textbook, they consider professional income with this method. Okay. And business income with this method, so that students should not make any errors. Is this clear? Ultimately, अगर आपका फंडा क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना है. Question number 4. So we are dealing with question number 4, page number 180.
from the following trading profit and loss account of Mr. Sunil for the year ending 31st March 2021. I told you what we need to read first, adjustment. Opening and closing stock were undervalued by 20%. What will happen if the stock is undervalued? अगर स्टॉक अंडरवैल्यूड है उसकी वजह से क्या होगा बताओ? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी स्टॉक रिजर्व करके सुना है? अनरियलाइज प्रॉफिट सुना है? आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं? मेरे को तो डाउट लगता है। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट कभी पढ़ा था आपने F5 बीकॉम में? अरे आई वांट द आंसर, यस और नो। यस सर। सपोज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्टॉक ट्रांसफर हुआ और वो स्टॉक बिका नहीं एट सेलिंग प्राइस, तो क्या करते थे आप लोग? और ये स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट सब में रहता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अमालगमेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये सारे टॉपिक फाइनेंस में है क्या आपके? है क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब? टेल मी यस और नो। पता नहीं, तुम्हारा हालत फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी उतना स्ट्रांग नहीं है बस। Yes, sir. बहुत Is there डेंजरस। in cost accounting. Finance may also it is a part of it. So if there is a under or over valuation of stock, it is going to impact my profit. Say for example, ये ओपनिंग स्टॉक 2 लाख है, ठीक है? इसने क्या बोला है? ये अंडर वैल्यूड है। एक्चुअली ये ओपनिंग स्टॉक 4 लाख होना चाहिए, ठीक है ना? आपने आपके फाइनेंस की पॉलिसी से उसको 2 लाख कर दिया। तो अगर ये 4 लाख हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? 4 लाख का प्रॉफिट 4 लाख ही रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। समझ गए? यानी अगर आप स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को ओवर और अंडर वैल्यूड करते हो, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पे जाता है, यानी ये प्रॉफिट को हैमर करेगा। और वही चीज होता है व्हेन देयर इज अ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर और हमने उसको सेलिंग प्राइस पे ले लिया, तो दैट क्रिएट्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक रिजर्व। इसके लिए हम लोग क्या करते थे? प्रॉफिट में से उतना पैसा घटाते थे और स्टॉक में से उतना पैसा घटाते थे। एंड एक्चुअल जर्नल एंट्री आता था उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू स्टॉक रिजर्व। This was the journal entry which, I mean, you should have passed to rectify those errors. क्योंकि वो क्या करता था? वो क्लोजिंग स्टॉक में घुस जाता था। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सपोज क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख से बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये 4 लाख का प्रॉफिट 4 लाख ही रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? सपोज क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 की जगह पे 3,40,000 कर दिया, तो क्या होगा? बढ़ेगा। ये 32 लाख हो जाएगा। यस और नो? ये अगर 32 लाख हो जाएगा तो ये नेट प्रॉफिट 5 लाख हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. Closing stock has direct relation with net profit. Can I say like this?
closing stock has direct relation with net profit. याद है, ऐसा कुछ सीखा है तुम लोगों ने? म्हणजे स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा. ओके, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा, बहुत जगह पढ़ा रहेगा, Yes, sir. है ना? Like inflation has direct impact for raising the price of the commodity. इन्फ्लेशन से मार्केट में प्राइस बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. So that has direct बढ़ेगा. relation. उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन. ओके, लाइक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, crude oil or any oil has direct proportionately relation of increasing the price of commodity. Okay, hoarding has directly relation with increasing the price of commodity. कोई भी चीज का स्टॉक होर्डिंग में करते, कभी कभी कांदा इन लोग नहीं डालते मार्केट में, दैट हैज डायरेक्ट रिलेशन और नॉट? ऐसे डायरेक्ट रिलेशन हम लोग इंडिकेट करते थे, याद है? डायरेक्ट रिलेशन का ऐसा ही सिंबल होता था, मैं एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा हूँ, बट मोर और लेस ऐसा ही दिखता था. यस और नो? ठीक है, तो डायरेक्ट मीन्स अगर ये बढ़ेगा, अगर सपोज ए डायरेक्ट रिलेशन विथ बी, तो अगर बी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ए भी बढ़ेगा घटेगा. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, याद sir. आ रहा है? हाँ, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन. वही चीज मैंने आपको यहाँ सिखाया कि अगर नेट प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन. जैसे अभी आपने देखा 2,40,000, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट आ सकते हैं, बट मैं एक जस्ट फंडामेंटल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का 2 लाख का 3 लाख कर दिया तो मेरा प्रॉफिट भी 4 लाख का 5 लाख हो जाता है. बट ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स मतलब 1/2, उल्टा है कि नहीं? अभी जैसे आपने देखा कि ये 2 लाख का 3 लाख हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? 4 लाख का 3 लाख हो जाएगा, 1 लाख से घट जाएगा ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है. क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज हाउ, दिस इज वन एडजस्टमेंट इज. तो अपना एडजस्टमेंट क्या कह रहा है देखो जरा. अपना एडजस्टमेंट कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है. अंडर वैल्यूड है बेटा. कितना अंडर वैल्यूड है? 20% से. म्हणजे ये जो वैल्यू दिया है दिस इज ओनली 80%. यस और नो? दिस इज 80% ना? Yes, sir. इसका 100% निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका 100 करोगे तो कितना आएगा? तो क्या करना है? वेरी सिंपल. 2 लाख कैलकुलेटर में करो. 2 लाख डिवाइड बाय 80% कितने देगा? तो कितना हो जाएगा? 2,50,000. So 50,000. actual value of opening stock is not 2 lakh.
एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 2,50,000। मैं तो वही लूंगा, ये तो एरर किया है उन्होंने। यस और नो? तो यहाँ पे क्या करोगे, 50,000 लिखोगे, ये 2 लाख नहीं कंसीडर करेंगे, इसका वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 2,50,000। 2,50,000. ठीक है, ओके। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 है, दिस इज ऑल्सो 80%। तो हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 डिवाइड बाय C, 3 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2,40,000 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लाख, 3 lakh. और इसको क्या लिखेंगे, 2,50,000। यानी ये 50,000 का यहाँ आएगा इफेक्ट, और 60,000 का इफेक्ट यहाँ आएगा। यस और नो? अब मुझे बताओ, Yes, sir. Yes, sir. ये 60,000 को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे। वेरी गुड, Add. दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द फंडा। और ये 50,000 को क्या करोगे बेटा? डिडक्ट। बस यही सीखना है। डेप्रिसिएशन अलाउ। सर बट अगर हाँ सर But- दोनों अमाउंट अगर अमाउंट सेम होते तो नेट इफेक्ट जीरो ही रहेगा ना सर। हाँ, अमाउंट सेम होगा तो एडजस्टमेंट ही नहीं होगा ना, इसके पहले अमाउंट सेम तो नहीं करना। कोई एडजस्टमेंट था क्या अपने पास बेटा, बताओ? प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था वो सब। जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगे उस हिसाब से अपने को सीखना पड़ेगा ना। यस और नो? अंडरस्टूड नाउ दिस? Yes, sir. Second adjustment is same what we did yesterday. Depreciation allowable as per IT rule is 2,50,000। हम लोग यहाँ एडजस्ट कर देंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन है क्या, हाँ 3 लाख है, मतलब एक्सेस है। 50,000 डिसअलाउड, 50,000 डिसअलाउड डेबिट साइड है, तो क्या करोगे उसको, ऐड और सब्सट्रैक्ट? Subtract. डेबिट साइड है, डेबिट साइड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, क्या करते हैं, कल भी मैंने सिखाया था। एक्सपेंसेस डिसअलाउड सर। ऑलवेज ऐड करते हैं, इनकम डिसअलाउड सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? ओके, अभी स्क्रीन क्लियर हो गई। Now tell me whether allowed or not. Opening stock allowed or not? Allowed. Allowed, Purchase sir. allowed or not? Allowed. Salary Allowed. salary and Allowed. wages allowed. Rent for the factory Allowed. allowed. Interest on capital, Allowed. interest on capital नॉट अलाउड। Not allowed. प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। कैपिटल गेन। नहीं, कल भी देखा था, पर्सनल कोई भी खर्चा, अगर इंटरेस्ट ही कमाना है तो बिजनेस क्यों खोला, बैंक में रख दो, इंटरेस्ट मिलेगा। बिजनेस नेट प्रॉफिट किसको दे रहे हैं, तुमको ही दे रहे हैं ना। क्यों नेट प्रॉफिट मिल रहा है मुझे ये बता। बिकॉज यू इन्वेस्टेड योर फंड, यू आर पुटिंग योर एफर्ट, एंड अगेंस्ट दैट यू आर गेटिंग दिस रिवॉर्ड। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर तुमको अलग से इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत है। इंटरेस्ट लेते हो तो फिर नेट प्रॉफिट मत लो। बिजनेस है, लोन थोड़ी तुमसे लिया है। दैट इज द लॉजिक। ओके, so this is not allowed. Yesterday also in all question we have not allowed. Sundry expenses अलाउड। allowed. Depreciation अलाउड। Allowed. net profit Allowed. static point, allowed and static point. Sales Allowed. allowed. Closing stock Allowed. allowed. Discount and rebate earned. Discount and rebate earned. Not allowed. अलाउड है। अलाउ होगा ना। डिस्काउंट में तो कैसे मिलेगा तुमको, किसी भी सैलरीड बंदे को मिलता है क्या?
या हाउस प्रॉपर्टी से मिलता है क्या? बिजनेस करने से मिलता है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? समझा Yes, कि sir. नहीं? डिविडेंड फ्रॉम Yes, इंडियन sir. कंपनी Allowed. not not allowed. absolutely not allowed. Income from other sources. What is happening? You had surplus fund, you have invested in company's dividend. Business करना जरूरी है क्या? Today I am also getting dividend from company. Am I doing business? Anybody can purchase the shares. Yes or no? And they can get the dividend. हाँ या ना? वो बिजनेस से मिल रहा है. बिजनेस करना जरूरी है उसके लिए. जैसे सेल्स के लिए बिजनेस करना जरूरी है, डिस्काउंट के लिए बिजनेस करना जरूरी है, वैसे डिविडेंड के लिए बिजनेस करना जरूरी है क्या? टेल मी दिस. No, sir. No, not required. That's why income from other sources, and it is fully exempted under section 35, 1035. Receipt from HUF. बिजनेस इनकम है या नहीं? छोटा सा कंसेप्ट लगाओ. बिजनेस से हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो. सिंपल लॉजिक है. रिसीट फ्रॉम Not HUF. allowed. नॉट अलाउड. एब्सोल्युटली नॉट अलाउड. ठीक है, बस हो गया. ये डिस्कशन हो गया. अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब सॉल्व करो. मैं 2-4 मिनट देता हूँ, अदरवाइज वी विल डू इट. कि हम ही करें, ज्यादा टाइम नहीं है एक्चुअली. एडजस्टमेंट थोड़ा टफ था ना, इसके लिए. चलो पहले फॉर्मेट लिख लो. कंप्लीट द फॉर्मेट. तो नेक्स्ट वीक तक ये सारे क्वेश्चंस कर लेना. ठीक है, कल भी छुट्टी है गणपति का, तो आप प्रैक्टिस कर लेना. आपके असाइनमेंट कंप्लीट कर लो. एंड नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक एज व्हाट वाज दैट? Capital gain. Capital gain. ठीक है. Probably I may take few extra lectures because these 2 week में अपने को सब कंप्लीट कर लेना है. 30th सितंबर के बाद एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं लेना है हमें. तो असाइनमेंट चेक कब होगा? 30th के बाद, सब हो जाने के बाद. साथ में मार्क्स देना है ना उसको. ठीक है, अभी पढ़ाने दे सचिन. डोंट डिस्टर्ब, लेट मी फिनिश ऑल दिस टॉपिक. उसमें पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाता है. सर लेक्चर के बाद थोड़ा वो करोगे, मतलब कि करेक्शन? यस यस, टुडे ओनली. आज ही बैठेंगे तो. Kindly join with the same link, same login ID and password. ये आप लोगों ने. Let us start with the net profit. How much net profit is given in the question? क्या दिया है? 4 lakhs. Yes or no? What is the net profit given? Yes, sir, 4 lakh. 4 lakh we will write. Now we will debit. Okay, disallowed for business expenses, may be allowable for other. We are not concerned about that. Opening stock आपने खुद बोला था सर इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, कितना आएगा? 50,000. सॉरी, बट ओपनिंग स्टॉक इसने पूरा इफेक्ट यहाँ नहीं लिया, यहाँ लिखा है. ठीक है, यहाँ पे 50,000 का इफेक्ट लिया. ठीक है, बट ये रॉन्ग वैल्यूड है, ये ध्यान रखना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने डिसअलाउड किया था, बोलेंगे 2 लाख. डेप्रिसिएशन जो आपने डिसअलाउड किया था,
3 लाख 3 lakh, टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 7 lakh, 7 लाख। ठीक है। क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक में एरर है, डिविडेंड एंड एसयूएफ। क्लोजिंग स्टॉक ये रॉन्ग वैल्यू है, हमको करेक्ट वैल्यू लेना है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 60,000 एंड एचयूएफ 1,40,000। 60,000 1,40,000 क्या था टोटल? 4,40,000। इसके अलावा डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कितना है? हमने लिया था 3 लाख, बट आईटी कितना बोल रहा है भाई लेने के लिए? ओनली 2 लाख। हाँ 2 लाख 2,50,000। हाँ 2 लाख यू आर राइट। तो अपने को कितना लेना है? 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना लेना है? 2,50,000। ये जो लिया रॉन्ग था। डायरेक्ट अगर 50,000 में माइनस करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम। यहाँ पे वी हैव एडेड 2 लाख and we have subtracted 2,50,000. So it is giving the same effect. Yes or no? Net effect is only 50. Yes or no? Same thing is happening with closing stock also. देखो 3 लाख, तो यहाँ पे हमने माइनस किया 2,40,000 और यहाँ पे ऐड किया 3 लाख, तो अल्टीमेट इफेक्ट इज 60,000. What is the net business income? How much is your net business income? 4,60,000. 4,60,000. Should be your answer. देखो 4,60,000. सर टीडीएस कहाँ कंसीडर होता है? हाँ जी, टीडीएस कहाँ कंसीडर होता है? टीडीएस बाद में होता है, जब हम लोग नेट इनकम कर लेंगे उसके बाद डिडक्शन में आता है। एडवांस टैक्स टीडीएस उसके आगे आता है। आपके पास जो मैंने ब्रिज कोर्स मटेरियल दिया था वो याद है? इसमें देखो टीडीएस है। ये दिख रहा है? दिखा क्या सचिन टीडीएस? तो जब आप कंप्यूट कर लेंगे, अभी क्या कर रहे थे, आपने सैलरी से सीखा, तो हर एक हेड को ऐड करना पड़ेगा। सैलरी ऐड करोगे, हाउस प्रॉपर्टी ऐड करोगे, बिजनेस प्रोफेशन ऐड करोगे, सब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से भी एक डिडक्शन आता है, उसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। और फिर जो भी टैक्सेबल लायबिलिटी आती है उसमें से डिडक्ट करके फाइनल जो टैक्स पेएबल होता है, जो टैक्स पेएबल होता है उसमें से टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, ये सब वहां से डिडक्ट होता है। तुमको ब्रिज कोर्स में ही बता दिया। उसके बाद फाइनली जो होगा वो तुमको एक्चुअल पे करना पड़ेगा या रिफंड होगा।